think tarot cards are one amazing tool that offer guidance. You can guide them that this thing is good for you and this is not good for you. Rest, taking decision is purely your call. जितना scary stuff डेवलप हुआ था अपने कल्चर के अंदर में या वेस्टर्न कल्चर के अंदर में वेरिन वुडू डॉल्स को नेगेटिवली यूज किया गया है somehow this generation I think is getting back into the roots and they are now believing it because they have seen the results. ठीक है, misconceptions about tarot is जैसे हमने बोला ब्लैक मैजिक से इसको काफी लोग कनेक्ट करते हैं. टैरो कार्ड रीडिंग कोई भी स्टार्ट कर सकता है. बीइंग गिफ्टेड इज एन एड ऑन एडवांटेज. व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेस्ड आउट मोड, व्हेन यू आर इन अ एंग्शियस स्टेट, यू आर नॉट इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ लिसनिंग टू व्हाट सामने वाला इज गिविंग यू द गाइडेंस. आपके थॉट्स आर नॉट इन सिंक ना, so you won't be receptive to hear anything. Hey guys, welcome back to the podcast with Karthik. Today we will deep dive into the world of mystic art. We have a very special guest today who, with the help of ancient sciences, help people unlock their true potentials. आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ साक्षी M. Chugh से, who is a founder of Inner Use and Moonchild. Sakshi since 2016 has been helping individuals with the help of tarot, numerology, vastu and crystals. Sakshi has a background in BCom and bachelor's degree in interior designing, which helps her bring a unique perspective to her practice. She is governed by number 3, because of which she has a keen interest in the occult sciences. Sakshi has been able to successfully convert her interest into her passion, because of which she was able to learn from the world renowned gurus. She has an overall experience of 8 years and 4 years experience in numerology, because of which she has been able to successfully transform lives of many individuals with the help of targeted results and easy to do remedies. Come with us on this journey and explore the insights Sakshi has to offer and unlock your true potentials as an individual or a newbie tarot reader. Join us on this podcast. How are you, Sakshi? I'm good, Karthik. Thank you so much. Thank you for taking out time and coming on the podcast today. I would like you to quickly brief our viewers about yourself and what kind of services do you provide when it comes to occult sciences. Sure. So, hi everyone. This is Sakshi M. Chugh, and I am a Vastu expert, master numerologist, tarot card reader, and crystal expert. I have been practicing occult since 2016, and I help in realizing people's true potential with the help of these modalities so that they can lead a peaceful life. Okay, Sakshi, tell me what is tarot? So, Karthik, tarot cards are one amazing tools that offer guidances. ठीक है, कोई आपके पास आ रहा है क्वेश्चन लेके या कोई डाउट लेके या कंफ्यूजन लेके आ रहा है, तो आप उनको बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स यू कैन गाइड देम दैट दिस थिंग इज गुड फॉर यू एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यू. रेस्ट, टेकिंग डिसीजन is purely your call because we all have our mentalities, we all have our thought processes. उसके हिसाब से the action is purely in our hands, but cards, they offer that roadmap or that guidance which is required for you. So I personally believe they are amazing tools that offer some good guidance, real time guidances. So मतलब अगर किसी के लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कोई चीज़ उनको समझ नहीं आ रही कि क्या एक्शंस लेने हैं, क्या करना, क्या सही है या गलत, तो उस केस में कोई आएगा आपके पास एंड दे विल टेक अ रीडिंग फ्रॉम यू एंड कार्ड से दे विल गेट अ ब्रीफ आइडिया कि क्या करना है, बट इट इज ओनली टिल दैट पॉइंट एक्शन लेना है नहीं लेना है या क्या किस पाथ पे वॉक करना है, दैट इज प्योरली अप टू द पर्सन की करना है नहीं करना. एब्सोल्युटली. कई बार ये हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि यार मैं वहाँ पे शिफ्ट होना चाहती हूँ, या जैसे फॉर एग्जांपल दैट लोकेलिटी या बी लोकेलिटी में शिफ्ट होना मेरे लिए बेटर है या सी में बेटर है. तो जैसे हमने बोला कि बी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू कंसिडरिंग ऑल द एनर्जेटिक्स एंड एवरीथिंग, बट इन रियलिटी होता क्या है, सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो जाते हैं या उसकी चॉइस ऐसे डेवलप हो जाती है कि उसको बी ए लोकेलिटी के अंदर में शिफ्ट होना पड़ता है. सो वी कैन जस्ट प्रोवाइड देम द गाइडेंस. जो कार्मिक इफेक्ट्स है, जो सिचुएशनल थिंग्स है, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल. सो इट इज लाइक कि आप
आपने अपनी तरफ से गाइडेंस उनको ऑफर कर दिया, बाकी चीजें जो एक्शन लेना ना लेना, आगे सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है, वो सारे थिंग्स आर समथिंग विच वी कैन नॉट कंट्रोल. So yes, as I said earlier, they are guidance tools. एंड ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने गाइडेंस दी है या वट एवर लाइक इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड विद द क्लाइंट Right. through your tarot cards, it's not necessary that everything that you have told them would actually turn out to be true. There are like some Absolutely. chances कि something can go here and there. कुछ कर्मास होते हैं फर्स्टली, सेकेंडली आपके खुद के एक्शंस होते हैं, थर्डली एनवायरमेंटल सपोर्ट भी होता है. ठीक है, अगर पर्सन के अंदर में खूब सारा पोटेंशियल है, ठीक है, काम करने का, बट आसपास एनवायरनमेंट नहीं उसे मिल रहा सपोर्टिव, तो वो तरक्की क्या ही करेगा. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से कि एक के बंदे के उसमें लिखा है कि दे विल सेटल अब्रॉड, बट वो इसी माइंड फ्रेम के अंदर के मैं तो अब्रॉड चले जाऊंगा, उसके चक्कर में वो अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है वो देख नहीं रहा, वो अपने मोड के अंदर, उसके पास पासपोर्ट ही नहीं उसने अभी तक बनवाया, तो भैया ऐसे कैसे चले जाओगे ना. यू हैव टू टेक दैट एक्शन ऑल्सो टुवर्ड्स दैट. सो टैरो इज सेइंग कि यू आर गोइंग टू गो अब्रॉड, बट यू हैव टू मेक एक्शंस, यू हैव टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट. ऐसे ही नहीं बैठे बैठे गोल घूमना शुरू हो जाएगा एंड यू विल गो अब्रॉड. मतलब tarot in a way just tells you what all possibilities are there in the future, but you have to put in those efforts to reach to those possibilities, to make those possibilities your reality in a way. Not only tarot, any other occult field, be it your astrology, be it your numerology, वो आपको बता देंगे कि यार ये चीजें स्कोप में हैं आपके, ये चीजें आपके चार्ट में शो होती है, बट आप जब तक खुद नहीं करोगे, यू वोंट टेक एक्शन, अपने कर्मा नहीं करोगे, वो चीजें आप अचीव कैसे कर पाओगे. आपको रेमेडीज भी करनी ही पड़ती है अल्टीमेटली. Okay. And does tarot possess that kind of energy where it can harm somebody? Because I feel like even I have interest in tarot and मैं भी सीख रहा हूँ tarot reading करना, and like you know me for a very long time, मेरा कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं, मतलब ऐसा कुछ अलग करने का. मेरा सडनली एकदम एस्ट्रोलॉजी और टैरो में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. राइट. एंड अभी मैं टैरो मैं काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की तरफ. अब मैं चलना शुरू हुआ हूँ कि थोड़ा बुक्स वगैरह मैंने परचेज करी एंड आई एम रीडिंग. राइट. बट मैंने जब भी किसी को बताया है ना, एवरीवन लुक्स एट मी विद अ स्लाइट डिसबिलीफ, या मतलब बहुत ही ना एकदम नजरिया बदल जाता है किसी का तुम्हारे को देखने का. या तो बहुत अच्छा होगा कि कोई एकदम ऐसे करेगा कि यार तू तो मतलब संत महात्मा बनने वाला है वैसा कुछ, या एकदम से हो जाएगा कि ऐसे बड़े ही ना डिस्गस्टिंग सा, एक मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बट एक वो हिंट ऑफ डिस्गस्ट दिखता है किसी की आईज में. तो टेल मी लाइक डज टैरो पोजेस दैट काइंड ऑफ एनर्जी वेयर इट कैन बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे टू हार्म समबडी or not? So, सबसे पहली चीज, be it any tool, it majorly depends upon the intent of the person, या उसके I would say upbringing कह लो, या environment कह लो, या intent कह लो, whatever way. अगर एक person का intent है to harm somebody, they'll use any tool, जोन सा भी tool उनको मिलेगा वो negative way में उसको use करना start कर देंगे. That is how I think कि जो जितना स्केरी स्टफ डेवलप हुआ था अपने कल्चर के अंदर में या वेस्टर्न कल्चर के अंदर में, वेर इन वुडू डॉल्स को नेगेटिवली यूज किया गया है, आई एम नॉट श्योर अभी उसके अंदर में, बट पीपल हैव बीन डूइंग ऑल दैट स्टफ. सो दैट इज मेजरली एन इंटेंट कि आप किस इंटेंट से कोई काम कर रहे हो. इफ योर इंटेंट इज प्योर, यू वोंट गो इनटू दैट डायरेक्शन. इट इज प्योरली ऑन इंडिविजुअल कि वो बंदा कितना किस पोटेंशियल पे वर्क करने का इंटरेस्ट लेता है. So, as you said, इन सब के अंदर में पोटेंशियल, डेफिनेटली पोटेंशियल है, बट आई वुड से यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द पर्सन, यू हैव टू लुक आउट फॉर अ पर्सन जिसका इंटेंट इज टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस एंड नॉट टेक यू ऑन द रॉन्ग वे. ठीक है, you have answered my question to some extent, but this was not exactly what I meant by that question. Like अगर मैं मान ले आया हूँ आपके पास रीडिंग करवाने फॉर अ थर्ड पर्सन, राइट, एंड आई हैव दैट इंटेंट ऑफ हार्मिंग दैट थर्ड पर्सन फॉर XYZ रीजन,
Can tarot card actually do something No. in a negative way? See, tarot cards are just the tool जो आपको दिखाएगा. ठीक है. Now that person का intent अगर वो करवाना चाहता है आपसे, तो वो जो करने वाला है, मतलब जैसे I am a reader, I would tell you the remedies that you have to do. ठीक है. So again, intent of the person who is doing the tarot card reading matters. अगर मैं सही हूँ, मैं बोलूँगी मुझे उन सब में नहीं fall करना, so I'll bluntly say this is not under my scope. If you want to do, I'm not the right person. So cards, अगर आप मुझे बोलोगे cards के अंदर में से कुछ हो रहा है, cards कुछ नहीं कर रहे, they are just a tool. ठीक है, they have the potential. It is majorly your intuition which is guiding you on how to read the cards, on the learnings that you have taken. जो ये सारी चीजें वो that is how they guide you. Tarot card चल के आपके लिए कोई remedy करेगा, वो नहीं possible है. वो आपका जो पर्सन जो काम कर रहा है, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, वो रीडर आपको अगर कुछ गाइड कर रहा है उस वे में, सो दैट कैन बी डन एंड यू आर डूइंग दैट रेमेडी एंड हार्मिंग अदर पर्सन. बट ये जरूर याद रखना, कर्मा है, देना पड़ेगा इसी लाइफ के अंदर में, हार्मिंग एंड नॉट. ठीक, मतलब टैरो कार्ड मैक्सिमम अगर कुछ कर सकता है वो सिर्फ या तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है या आपको एक ब्रीफ आइडिया दे सकता है, बट इट कैन नेवर हार्म अ रीडर, अ क्लाइंट और एनी थर्ड पर्सन. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द पर्सन हु इज गेटिंग दैट रीडिंग डन कि और द पर्सन फ्रॉम हुज ही इज गेटिंग दैट रीडिंग डन कि क्या कैसे होना है. ओके, एंड मतलब कार्ड्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है. इट कुछ करना ना करना सब कुछ आपके रेमेडीज के ऊपर आता है कि आप जो भी उसके आगे आप प्रोसेस करोगे उससे ही होगा जो होगा. राइट. ओके, ग्लैड टू नो. अब मैं किसी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को कि मैं टैरो रीडर हूँ या मैं सीख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ भैया मैं आपको हार्म नहीं करने वाला. नहीं, वो तो वैसे भी कोई करने इंटेंट हमारा होता ही नहीं है. See, when you have started this journey, I personally believe that you must have gone through some situation wherein you personally needed support, and now you have developed that frame of mind कि यार मेरे को support मिल रहा है, मैं दूसरों को support offer करूँ. So कई लोगों की यही mentality होती है. वो टाइम पहले के थे, होना स्टार्ट हुआ है, but somehow this generation I think is getting back into the roots, and they are now believing it because they have seen the results, and now they have kind of taking in the proper way. एक गाइडिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, एंड विच इज द राइट वे टू डू दीज थिंग्स. यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग. टैरो इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ if you are in the right hand. You told me about how it is misunderstood. I am pretty sure tarot से related काफी सारे misconceptions होंगे. One being कि it like since we just spoke, right, it can be used to harm somebody. Can you share some other misconceptions that are out in the market when it comes to tarot reading and or tarot readers also? Misconceptions when I talk about tarot reading, सबसे पहले तो लोगों का यही होता है ये फ्यूचर बताएगा हमारा. मतलब लोग एकदम से आते हैं एंड दे स्टार्ट आस्किंग हमारा फ्यूचर बताओ ना, आपको मेरी शादी दिखती है इसके अंदर में, आपको ये दिखता है. सो इसका पोटेंशियल इज वे बियॉन्ड दैट. इट इज नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक, इट इज वे बियॉन्ड आवर मटेरियलिज्म. एंड अगर आप इसकी चेंजेस को, इसके गाइडेंस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, यू विल सी अ शिफ्ट इन योर लाइफ. ठीक है. मिसकंसेप्शंस अबाउट टैरो इज जैसे हमने बोला ब्लैक मैजिक से इसको काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं, लोग डरते हैं इससे, उनको ये लगता है कि यार टैरो रीडिंग कराऊंगा, मुझे नहीं पता इसका क्या रिवर्ट आएगा. इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव व्हेन द रीडिंग इज डन. कई लोगों को इस चीज़ का भी डर होता है कि यार नेगेटिव रीडिंग आ गया तो मैं इसका कैसे जवाब दूंगा, या इसका मैं कैसे रिस्पॉन्स दूंगा, या इसको मैं आगे कैसे टेकअप करूँ. तो ये चीज़ें आ जाती हैं. And I personally feel the biggest block that I have faced is making people believe कि यार this is more of guidance and not just prediction. Okay. So इस पॉडकास्ट से, आज के इस पॉडकास्ट में टू ब्रिंग यू एज अ गेस्ट, द होल आइडिया वाज कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है या somebody is getting into this field and is very new,
Right. to help them also. So my next few questions are going to be based on that. Okay. क्या कोई भी टैरो रीडर बन सकता है या somebody has to be gifted to get into this field? Like what are your take on that? My take on this would be, देखो टैरो कार्ड रीडिंग कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट योर इंटेंशन हैज टू बी प्योर. ठीक है, जितना प्योरिटी के साथ आप इस फील्ड के अंदर में कनेक्शंस बिल्ड करोगे कार्ड्स के साथ में, जितना आप मेडिटेट करोगे, उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, उतने ही यू विल बी एबल टू गाइड पीपल इन अ बेटर मैनर. Once you start delivering a proper guidance to people, automatically they will start feeling a connect with you. Right? So that is what is more important. ठीक है, एज अगेन गिफ्टेड होना इज नॉट एसेंशियल, बिकॉज हर कार्ड के अंदर में कुछ सिम्बॉलिज्म होते हैं अपने ऑटोमेटिकली. यू नीड टू नो व्हाट दीज सिम्बल्स मीन. सेकेंडली, इंट्यूशन इज व्हाट इज नीडेड, and to develop that intuition you have to work with crystals and you have to meditate in them. So anybody can do it. It is just your intention again. Okay. So till date I don't feel मेरी intuition अभी इतनी ज़्यादा build हुई है. ठीक है. How I do a reading is mostly from what I see in the card. Again जो symbols वाली चीज़ आपने बोली, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ मैं उसके बेसिस पे करता हूँ. What is the possibility कि मेरी रीडिंग्स उतनी करेक्ट होंगी? Like to get that 100% करेक्ट रीडिंग इंट्यूशन होनी ज़रूरी है, या अगर आपको कार्ड्स के सिम्बल्स का मीनिंग भी समझ आ रहा है, फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन गिव अ करेक्ट, इफ नॉट टू द पॉइंट, देन प्रोबेबली से 80 to 85% आप फिर भी एक करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हो. गाइडेंस सॉरी. राइट. सो सबसे पहली चीज़, व्हेन यू आर इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, even if you are doing with the symbols, you have to trust yourselves. So that is the first step of building your intuition level. When you start believing your reading, your symbolism, interpretation, जब आपको अपने ऊपर भरोसा आना स्टार्ट होता है, that is kind of a meditation that you are doing for yourselves. ठीक है, तो कभी भी अपने रीडिंग के ऊपर डाउट नहीं करना है. एंड इनिशियली जब आप बिगिन भी कर रहे हो, सबसे पहले अपने लिए रीडिंग करो, डेली बेसिस पे 1 कार्ड रीडिंग, 2 कार्ड रीडिंग, गाइडेंसेस अपने लिए करो. सो दैट विल एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ दैट. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उसको वापस से देखो कि आपने जो रीडिंग किया था वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं डे के अंदर में. सो दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप योर इंट्यूशन लेवल ऑल्सो, एंड यू विल स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग विद द कार्ड्स ऑल्सो. वो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा आपका कार्ड्स के साथ में, एंड gradually you will see that slowly you are kind of, मतलब cards are speaking to you. ठीक है, मेडिटेशन वो ज़रूरी नहीं है कि आप बस बैठे हो आंखें बंद करके और उस जोन के अंदर में हो. देयर आर वेरियस अदर वेज ऑफ मेडिटेटिंग. So first is building up trust with yourself. Secondly, even if you are just sitting and focusing on your breath work before doing the cards, ठीक है, कार्ड्स को करने से, रीडिंग करने से पहले भी अगर आप सिर्फ 5 minutes के लिए भी बैठे हो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट. बट यू नीड टू डू इट. दैट इज अ रिचुअल दैट यू नीड टू फॉलो इट. आपने जैसे यहाँ पे सेलेनाइट देख रहे हो, यहाँ पे क्रिस्टल है. सो सेलेनाइट इज अ क्रिस्टल विच हेल्प्स इन क्लेंजिंग. It improves your spiritual growth also, and it helps in developing your intuition level. So work with this. Working with this, when I say, is holding it in your hands and meditating with that. ठीक है. सो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाती है, एंड धीरे धीरे आपके और इंट्यूशन लेवल पे आप एनहांस होना स्टार्ट हो जाते हो. अगर आप अभी भी सिम्बोलिज्म से रीड कर पा रहे हो, इंटरप्रिटेशन आपकी सही ही है. ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ ऑन दैट. सो आई पर्सनली बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग अ वेरी गुड जॉब. इट इज जस्ट आगे बढ़ने के लिए, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट एनर्जेटिक्स ऑफ द क्लाइंट आर, यू हैव टू डेवलप दैट इंट्यूशन लेवल. दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. Okay. Again, going back to somebody who wants to get into this field, so it is not necessary that you have to be gifted to start your journey as a tarot reader or as an astrologer, या किसी भी like इस occult field में किसी भी उसमें. It is all about practice, कि जितना ज़्यादा practice करोगे उतना ही you will improve. Absolutely. Being gifted is an add-on advantage. ठीक है, वो थोड़ा सा आपका कनेक्शन और बेटर तरीके से इम्प्रूव हो जाता है. यू कैन सेंस एनर्जीज. जो एम्पैथ्स होते हैं, दे कैन सेंस, दे कैन फील हाउ द सामने वाला पर्सन इज फीलिंग, व्हाट इज गोइंग इन हिज हेड.
So that is an added benefit. But उसके लिए भी उसको meditate करना ज़रूरी है. So as to just clear off the cords and to remove all the जो energy absorptions हो जाती हैं in fields के अंदर में. So meditation is a must. Be it for 15 minutes, be it for half an hour, be it for 2 hours, whichever ways you are comfortable. Anybody can do tarot card reading. It is just हर काम में effort लगता है, वो चीज़ करनी पड़ेगी. तो when you say that we have to meditate before doing a tarot session, do you also mean कि tarot has something to do with concentration? Like you need to have a very good concentration level कि आप बिल्कुल ही you get like when you're doing a reading you go deep into that, और like it is just purely कि ठीक है अगर आप normal भी reading कर रहे हो, बस कार्ड निकाला एंड जो आपको समझ आ रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, बस आप वो चीज बोलो. डज कंसंट्रेशन आल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल इन बिकमिंग अ टैरो कार्ड रीडर? सी कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, बट जब आप रीडिंग कर रहे हो उससे पहले मेडिटेशन इसलिए सजेस्टेड होती है बिकॉज दिस इज अगेन एन एनर्जेटिक वर्क दैट यू आर डूइंग. ठीक है, सो एनर्जेटिक वर्क के लिए यू हैव टू बी इन दैट मूड, यू हैव टू बी अ न्यूट्रल पर्सन. अदरवाइज कार्ड्स आपके मूड स्विंग्स, आपके इमोशंस डिपिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो यू हैव टू बी इन अ वेरी क्लियर बैलेंस स्टेट बिफोर डूइंग रीडिंग फॉर समबडी एल्स. अदरवाइज मैंने कई बार देखा व्हेन आई एम नॉट मेडिटेटिंग एंड आई डिड अ रीडिंग, बहुत ही कंफ्यूज्ड कार्ड्स निकलते थे कई बार. वो स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ये सामने वाले पर्सन की एनर्जीज उसके अंदर में दिखाई दे रही हैं. सो वो रीडिंग इज लाइक यूजलेस. ठीक है, सो ऐसी रीडिंग के उस फेज के अंदर फिर मैं आई हैड टू टेल द क्लाइंट लेट्स डू इट आफ्टर 30 minutes or 1 hour or someday else, because that is not a genuine thing that you are doing. So to be in a balanced state you have to meditate well before the session. ठीक है, so that you are again in a balanced state. Now जब आप meditate कर रहे हो तो automatically आपका concentration improve हो जाता है. Secondly, focus and concentration is very important while you are doing tarot card reading, and you have to have a very good environment around you. You cannot just sit in a room where music is playing loud. There are lots and lots of distraction, because ना आपका फोकस उसके ऊपर पड़ रहा है, ना क्लाइंट का फोकस उसके ऊपर पड़ रहा है. दिमाग में 10 चीज़ें चल रही, मुझे वो भी देखना, मुझे वो भी देखना, मुझे वो भी करना है, मुझे म्यूजिक भी एंजॉय करना है. सो दैट मूड इज नॉट डेवलपिंग, द एनर्जीज आर नॉट गेटिंग इन सिंक. सो कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है एंड मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू हैव दैट एनवायरनमेंट ऑल्सो. मतलब a lot goes into preparing yourself for a tarot session, as well as like preparing the client also for a tarot session, because I guess when you just said कि कई बारी कार्ड में सामने जो आपसे रीडिंग करवा रहा है उसकी भी एनर्जीज आपको कई बारी कार्ड में दिखती हैं. Absolutely. तो आई एम प्रिटी श्योर the viewers also would like to know, how do you prepare for a tarot session? A person who's coming for a reading for a specific tarot session, what do you do? So सबसे पहले तो I don't take urgent cases, immediate जहाँ पे उनको चाहिए होता है guidance या reading चाहिए होती है, I don't take them, because I say that we need time and मतलब it's a process. So I generally schedule next day वाले sessions. Now before taking any session I prepare myself, I prepare my environment. एंड आजकल क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो इट्स वाया जूम, बट स्टिल यू हैव टू हैव दोज एनर्जीज. तो स्मजिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज एट टाइम्स आई यूज सेज स्टिक्स, आई यूज इंसेंस स्टिक्स. नॉर्मली बहुत ज़्यादा वो सब नहीं है, यू नो, हाई फाई वो इतना ज़रूरत नहीं होती. बेसिक स्टफ दैट आर अवेलेबल एट योर होम कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लेंस योर स्पेस. अगरबत्ती हम यूज कर सकते हैं, बे लीफ, तेज पत्ता सबके घर में होता है, सिनेमन स्टिक्स होते हैं. आप इन सब को भी बर्न करके अपने पास रख सकते हो while you are doing the reading or while you are getting the reading done, both ways. ठीक है, so before the reading I prepare my space, I clean it, वैसे भी clean it and वैसे भी with the help of smoke I cleanse it. I play a soft music. I do meditate 5 minutes, 10 minutes depending upon the time that I have. I do keep my crystals ready while doing the reading. मेरे पास crystals मेरे set होते हैं. I do have a candle that I lit up.
ठीक है. नाउ क्रिस्टल्स के अंदर में कुछ एक क्लेंजिंग के लिए होता है, कुछ एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, बिकॉज आई नीड प्रोटेक्शन ऑल्सो एंड आई नीड क्लेंजिंग. सो generally it's black tourmaline and selenite that I keep on my table. Then we have a candle that I light up. Negativity removal होता है generally again. उसके अलावा रीडिंग का जो क्लॉथ होता है दैट इज देयर एंड वी डू द कार्ड्स. जो सामने क्लाइंट होते हैं जनरली आई इफ समबडी इज विजिटिंग तो पर्सनली तब उनको मैं हैंड वॉश करा के सैनिटाइज करा के बिठाती हूँ. ठीक है. अदरवाइज इफ इट्स ऑनलाइन देन आई से देम टू बी यू नो टू टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड टू सिट इन अ वेरी काम स्टेट वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस. ठीक है. एंड स्पेसिफिकली एट दोज मोमेंट्स या उस टाइम का स्लॉट हम लोग बुक करते हैं जब वहाँ पे उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है. जैसे मदर्स है व्हेन देयर किड्स आर ऑफ या उनके हस्बैंड्स आर ऑन देयर ऑफिस, उस टाइम्स का स्लॉट हम लोग रखते हैं. So that is how we prepare ourselves and our clients. Once we are done with the reading, again the cleansing ritual is being performed. Okay. So before a reading and during reading, it is very important to keep your physical, your astral, your spiritual, all your areas clean. Absolutely. And you need to be very patient, very calm when you are doing a reading or when you are getting a reading done. Absolutely. No, it's not, you should not be you should not be in a confused state, Anxious state. हाँ. बिकॉज वो डिपिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है. एंजाइटी कार्ड्स के अंदर में डिपिक्ट होती है, सारे एंक्शियस कार्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. सो यू हैव टू काम द सामने वाला पर्सन ऑल्सो कि भाई इट्स ओके जस्ट चिल. तो तभी इसीलिए इमीडिएट केसेस नहीं लेते हैं क्योंकि वो मुझे आज सेशन चाहिए, आई एम इन अ वेरी बैड स्टेट, चिल, यू हैव टू रिलैक्स फर्स्ट, सो लेट्स बुक फॉर द नेक्स्ट डे. बिकॉज कॉफी पी कर चाय पी के आराम से बैठ, थोड़ा काम डाउन हो, उसके बाद हम करते हैं. क्योंकि when you are in a stressed out mode, when you are in an anxious state, you're not in the possibilities of listening to what सामने वाला is giving you the guidance. You don't want to hear that out. तो इतना ओपन होना पड़ता है. ओपन कब होगा? जब आप काम डाउन हो गए. तो इसी चक्कर में फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर ही बेटर रहता है सेशन करना. सो इवन इफ समबडी इज प्लानिंग टू बुक अ सेशन, ये नहीं कि हमारे साथ अभी कुछ सिचुएशन अराइज हुई है या मेरे को अभी सेशन चाहिए, डोंट डू दैट. टेक सम ब्रीदर ऑल्सो. अपना सेशन बुक कर लो बट फॉर द नेक्स्ट डे टेक सम ब्रीदर. प्रिपेयर योर सेल्फ विद द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क. एक क्वेश्चन लिस्ट डाउन करके रखो एंड देन अप्रोच द सेशन. बिकॉज कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं, आप बताओ आप तो टैरो कार्ड रीडर हो, आपको कार्ड्स में क्या दिखाई देता है? अरे यार तुम अपनी रीडिंग लो. एंड बिकॉज मैंने भी जब मतलब माई इंटरेस्ट इन टैरो स्टार्टेड फ्रॉम टेकिंग टैरो रीडिंग्स फ्रॉम समबडी. एंड मैंने एक टाइम पे इतने सारे सेशंस ले लिए कि मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा एंड मैं इस फील्ड में थोड़ा इस फील्ड की तरफ चलना शुरू करा. But now when you say that you need to take a breather, I also understand why and from where you're coming. Because मेरे को अगर स्ट्रेस होता था ना, मेरे को होता था कि ओ भाई फट से मेरे को रीडिंग चाहिए और मैं एकदम से कॉल करूँगा या जैसे बुक करी एकदम से सेशन लिया एंड मेरे को भी क्लैरिटी नहीं होती. मेरे को भी सेशन लेने शुरू करने के एटलीस्ट 5-10 मिनट लगते हैं उस सेशन के बीच में अपने थॉट लाइक द ट्रेन ऑफ थॉट्स टू गेट इनटू अ लाइन. हर चीज इतनी हैफेजर्ड हो रही होती है ना जब लाइफ में कुछ गलत जा रहा होता है कि यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट थिंक स्ट्रेट ऑल्सो. एंड इन दैट at that point of time probably if somebody says something negative to you कि like something you don't want to listen to, because obviously बात है अगर कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है एंड उसका सोल्यूशन इज नॉट पॉजिटिव या उस चीज का आउटकम इज नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव, यू डोंट वांट टू लिसन टू इट. Absolutely. You always want everything to work out in your favor. अगर कुछ नहीं जा रहा आपके फेवर में, you एकदम lose your shit कि यार ओ ये कैसे हो गया मेरे साथ, I don't deserve this and all. तो कई बारी मेरे को भी वो होता था कि यार पता नहीं मेरे को भी अब मेरे को जो आंसर मिलेगा क्या वो मेरे फेवर में होगा. अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करूँगा. What is the like how do I move past that? And so I understand like why is it necessary to take a breather. एक अगर आप नेक्स्ट डे तक नहीं करना चाहते तो शायद 2-3 घंटे का टाइम ले लो. एब्सोल्युटली. क्योंकि यार
जब तक आपके थॉट्स आर नॉट इन सिंक ना, तो यू वोंट बी रिसेप्टिव टू हियर एनीथिंग, या वो पर्सन के क्या, सामने वाले के क्या ओपिनियंस है या क्या वो गाइडेंस देना चाहता है, यू वोंट वांट टू लिसन दो स्टफ. तो उस सेशन का फिर कोई बेनिफिट नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी. एंड फिर एंड में होता क्या है, यार वो तो ऐसे ही बेकार है. हाँ मतलब आई You stop अंडरस्टैंड trusting. बिकॉज कई बार क्या होता है, आई एम प्रिटी श्योर एज अ टैरो रीडर यू कांट always say everything directly. You have to somewhere or the other twist the things and like sugarcoat the things in a way कि बंदे को बुरा ना लगे सामने वाले को, because like यार कहीं ना कहीं एक रीडर भी तो एक एम्पैथ है ही. You also have feelings, you understand what the other person might be going through at this point of time. क्या उसको एक चीज डायरेक्टली बोलना सही है या मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा शुगर कोट करके बोलने की कोई चीज जरूरत है. एज इन एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज जब मेरे साथ ये चीज हो रही थी, द स्टेट आई वॉज इन एट दैट टाइम, मेरे को ना मतलब मेरे को भी होता था कि यार मेरे को बस अच्छा ही सुनना है, मुझे कुछ बुरा नहीं सुनना. एंड उस टाइम पे मतलब कई बारी चीजें जो किसी ने मेरे को बोली है ना, मेरे को वो लगता था कि यार ये इसने बोला तो था मेरे को कि ये मेरे साथ ये चीज होगी, बट हो क्यों नहीं रही. हाँ. बाद में थोड़े टाइम के बाद मेरे को ये चीज रियलाइज हुई, व्हेन थिंग्स सेटल डाउन, चीजें जो होनी थी हो गई, सब कुछ हो गया. 3-4 महीने के बाद मेरे को ये चीज रियलाइज होनी शुरू हुई कि यार इसने तो मेरे को ऐसे बोला था, उसने मेरे को ये नहीं कहा था कि ये चीज होगी, उसने मेरे को कहा था ऐसा हो सकता है. हम डेस्परेट हो जाते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स. तो वो सामने वाला पर्सन उस हिसाब से फिर बोलना स्टार्ट कर देता है. बट इन रियलिटी पता है क्या, हम कह रहे हैं शुगर कोटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट अगर आप ऑनेस्टी से विद ओपन माइंड अगर सामने वाले की पर्सन की गाइडेंस सुनोगे, तो उससे यू कैन रीप अमेजिंग बेनिफिट्स, इवन इफ द रीडिंग जो उसने आपके लिए करी दैट्स नॉट इन योर फेवर. नाउ इजंट इट गुड कि अगर आपको एडवांस में पता चल जा रहा है कि यार फॉर एग्जाम्पल तू यूके में जाके पढ़ना चाहता है या इंडिया में पढ़ना बेनिफिशियल रहेगा. हम डेस्परेट है, हमको यूके जाना है, ठीक है. यूके का जबकि दिख रहा है कि तेरे को उधर जाके हेल्थ वाइज सूट नहीं करेगा, यू वोंट बी स्टेबल इमोशनली, सारा कुछ तो पर्सन गाइड कर रहा है ना. मतलब जरूरी थोड़ी ना उधर जाके ये सारा एक्सपीरियंस करना है, सारा कुछ करना है एंड देन यू कम बैक. व्हाई डोंट यू जस्ट लिसन टू दैट पर्सन एंड स्टे इन इंडिया एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. तो ये चीज हमको अगर पहले से पता चल रही है, ये गाइडेंस मिल रही है कि these things will occur if you go to UK, then why don't we take such actionable steps to stay in the other option? So वो चीज़ें acceptable अभी तक नहीं हुई है हमारे मेंटालिटीज के अंदर में, वो रिसेप्शन नहीं है. ठीक है, तो मैं वही मतलब बेसिकली मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि take these as guidance tools and be open to what the सामने वाला person is trying to say. वो bluntly बता भी देगा आपको, आप में सुनने की हिम्मत है. ओके हाँ नहीं सही बात है, मतलब वो शुगर कोट ना भी करना चाहे, बट तुम में हिम्मत है सुनने की. I feel at this point of time not everybody has that kind of patience and that kind of understanding कि कोई कुछ बुरा अगर कोई आपको बता रहा है तो उस किसी सामने वाले के बुरा बताने में भी आपका ही एडवांटेज है. नो बट probably you are in such a mess at that time that even your brain does not think straight. Truth is always bitter, yaar. Truth is always bitter and lies are always sugar coated. It's up to you which path you have to choose. हम as a tarot card reader we can give you the bitter truth guidance, but are you accepting that? बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके अंदर में, because जैसे recently I had this case wherein that lady was having troubled relationship with the husband, almost on the verge of divorce, wherein lady is not ready to give the divorce but husband wants to give the divorce. And on the other hand when we check the cards में दिख रहा है कि even if she leaves the person, even if she opts to get married again, the married life is not going to get smooth. तो जिस पर्सन में अगर मैरिज लाइफ मुझे दिख रही है कि वो स्मूथ नहीं है एंड शी शुड बी फोकसिंग ऑन हर करियर, मैं उसको ये चीज गाइडेंस दूंगी ना, क्योंकि दैट इज समथिंग लाइक शी विल बी वेस्टिंग हर लाइफ अदरवाइज, कि दोबारा से शादी में जाना, दोबारा से सारा फेस करना एंड गिविंग अप ऑन अ करियर.
जिसमें जबकि उसमें पोटेंशियल है. So my role as a tarot card reader is to give that clear picture. अब उसमें सामने से वो रेसिप्रोकेट कर पा रही है, वो इजीली समझ पा रही है, वो चीज उसके ऊपर में है. आई कैन गिव दैट बिटर ट्रूथ, बट डू यू वांट दैट? नहीं सही मैंने बात तो है. दे दी उसको. आपके ऊपर है. वो आपके ऊपर आप है. उसको कैसा लेना चाहते हो? नहीं, at this point of time, I feel it would be very helpful for the viewers also if you can tell how do you tell something negative or potentially negative that you see in the cards. How do you tell that to a client? See, this is my personal way and this is my personal opinion. I don't recommend it to anybody, but I generally be very genuine and blunt with my card readings to the client. अगर मुझे issues दिखाई दे रहे हैं, I'll say them, I'll communicate them, because मैंने past के अंदर में I have had experiences wherein I tried sugarcoating and that did not turn good. ठीक है, so I don't want to lose somebody's faith just to sugarcoat them. So I am being very blunt. I'll choose to be very, I do pick up words कि उसे एकदम से hurt ना हो, but I try to give की clear picture कि यार this is not going to work for you. It is always better to go for this option. That is how I work. I give fair picture. बस अपने words को control करके. I don't sugarcoat. Words. मतलब it's not necessary कि sugarcoat करना ही करना है. You can just choose your words wisely, probably. But आपको convey करना चाहिए. I personally believe जो आपने reading करी है, उसको as it is आपको convey करना चाहिए to the client. Okay. Now the next question is slightly from the perspective, not slightly, but it's from a perspective of a reader. अगर मान लो I come for a reading, I take a reading from you and I am not very convinced with what you're saying because somewhere or the other I want to hear something else that you're not talking about, या you're sugarcoating या कुछ भी. How often should a person take a reading? Like how frequently can somebody take a reading on a same question or a same situation? देखो, सबसे पहली बात जो एक्सपीरियंस है मेरा, अगर पर्सन को मैं नहीं समझ में आई, वो इमिडिएटली दूसरे बंदे के पास जाएगा ही जाएगा. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. ठीक है. अगर आप सेम पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, लाइक अगर मेरे पास कोई पर्सन आया है एंड दे चूज टू गेट अ रीडिंग डन फ्रॉम मी एंड दे आर कन्विंस्ड विद दैट आइडिया, बट 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, उसके बाद वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, दे कम बैक टू मी फॉर दैट सेम क्वेश्चन, देन इट्स डूएबल. ठीक है. वो तो इमीडिएट मतलब 3 months के अंदर अंदर में आई फील की एनर्जीज चेंज हो जाती है. सो वी कैन स्टिल गो बैक टू द सेम क्वेश्चन बट नॉट इमीडिएटली विद द सेम पर्सन. ठीक है. मेरे पास आ रहे हो, सेम क्वेश्चन आफ्टर 2 to 3 months. It is कि it takes 21 days to for your energy to like get over, and this thing is directly connected to your moon cycle also कि full moon से new moon के बीच में आपके 21 दिन का टाइम लगता है. तो मेरे को जिनसे मैं सीख रहा था उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आपको अगर आपने आज एक रीडिंग ली है तो वेट फॉर 21 days, लेट दैट एनर्जी सबसाइड या लेट दैट एनर्जी वर्क इट्स चार्म. एक बार ही हो जाए उसके बाद आप या तो वापस उसी क्वेश्चन को लेके सेम रीडर या किसी नए रीडर के पास आप तब जाओ, बट एटलीस्ट वेट फॉर दैट 21 days का पीरियड. इट्स नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल आपको हर बार फुल मून से न्यू मून तक का ही वेट करना है, बट जब भी आपने रीडिंग ली है उसमें वो 21 days का एक गैप डाल दो कि 21 दिन के बाद ही आप अगला मतलब वो सेम क्वेश्चन के साथ जा रहे हो किसी और के पास या उसी बंदे के पास. बट is it okay to like get in touch with your reader and speak about the updates? कि मान लो आज मैंने आपसे एक रीडिंग ली है, 2 दिन के बाद मेरी लाइफ में कुछ अपडेट हुआ उस सेम सिचुएशन को लेके, तो इज इट ओके टू गेट इन टच विद यू एंड टेल यू कि हाँ यार मैंने अभी तक ना ये अब आज मेरे साथ ये चीज़ हुई, उस सिचुएशन जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन के बारे में बात करी उसको लेके कि आज मेरे साथ कुछ ये चीज़ें हो रही हैं, तो इज इट ओके टू डू दैट डिस्कशन विद योर रीडर कि अब ये अपडेट है, अब ये अपडेट है, अब ये अपडेट है, और शुड यू जस्ट लाइक टेक अ ब्रेक ऑफ 21 days or 3 months as you said? Yes, it is essential to take a break
ठीक है देख, देर आर टाइम्स व्हेन पीपल आर वेरी डेस्परेट, ठीक है, एंड एज अ सेड प्रीवियसली वो डेस्परेशन कार्ड्स में दिखाई देती है, ठीक है. सो व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली पुशिंग एंड गेटिंग डेस्परेट ऑन सर्टन थिंग्स, मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है, ठीक है. सो लेटिंग गो वाला जो एस्पेक्ट होता है, पीपल नीड टू लर्न दैट, ठीक है. बट स्टिल देर आर पीपल जो नहीं बिल्कुल समझते ये चीज को. इफ दे आर नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्टरी आंसर फ्रॉम मी, दे विल अप्रोच द सेकंड पर्सन इमीडिएट, ठीक है. क्योंकि सेकंड पर्सन इज नॉट गोइंग टू आस्क आपने अभी ये क्वेश्चन किसी से पूछा क्या. हाँ, nobody, हाँ, एग्जैक्टली. तो वो किसी को नहीं पता होता, वो पर्सन के ऊपर होता है. बट वो पर्सन अगर डेस्परेट है तो वो जाएगा ही जाएगा, उसको जितना मर्जी आप कह लो. बट अगर वो मेरे पास आ रहा है एज एन इंडिविजुअल, उसने मेरे से आज सेशन लिया, मैं परसों उसका सेशन दोबारा नहीं लूंगी. मिनिमम 1 मंथ तो जाएगा ही जाएगा, 1 मंथ. हाँ, मतलब वही 31 डेज वाली बात हो गई, चाहे वो Absolutely. 21 डेज हो चाहे 30 डेज हो. हाँ, ठीक है. ओके. क्योंकि वो फर्दर ना कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा. अगर आप एक एक चीज के लिए पूछोगे ना, एक एक एक्टिविटी के लिए अपने डिपेंडेंसीज के ऊपर रख दोगे, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस लाइफ टाइम. इट्स गोइंग टू बी गेटिंग वेरी डिफिकल्ट. अपना लॉजिकल कहाँ जाएगा यार, अपने लॉजिक्स कहाँ गए, अपने सिचुएशन स्टफ कहाँ गई. People misunderstand this science to be as a guidance. They take this as just यार ये वहम लेना शुरू कर देते हैं. उससे पूछ लेते हैं वहम, अपना वो डाउट क्लियर हो जाएगा. मतलब वो डाउट को भी वहम में डालना शुरू कर देते हैं. कलर लेना है, कौन सा कलर ले लो यार. मतलब ठीक है, तुमने वास्तु के हिसाब से बैलेंसिंग करा ली, सारा कुछ कर लिया. अब एक पर्सन ने तुम्हें सजेस्ट कर दिया कि दीज आर योर लकी कलर्स, व्हाई डोंट यू जस्ट गो विद देम. या अगर कुछ एक छोटी सी चीज नेल पेंट पसंद आ रही है, ले लो यार. दूसरे कलर की ले लो. Why do you have to get, यार I am planning for this manicure वाला चीज, do you think this वाला color will suit me for this during my wedding या during my event. Let's not get into too much of vehem. Okay, अब since we are like talking about vehem, do you feel कि ये vehem वाली भी जो development होती है client में, it has something to do with the reader, like कि अगर कोई रीडर किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अगर एम्फेसिस डाल दे, बी इट रीडिंग फॉर टैरो और वास्तु और न्यूमरोलॉजी, कि शुड अ रीडर बी वेरी ब्लंट विद समबडी, शुड दे टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा काम होकर किसी से बात करे, ताकि ये वहम वाली चीज ना डेवलप हो किसी के अंदर की बिल्कुल ही कोई बंदा अपनी हर चीज को आपके हाथ में सौंप देगी, लो जी मेरी जिंदगी है आपकी मैंने हाथ में दे दी है, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा. हाउ शुड अ रीडर फ्रॉम अ रीडर्स पर्सपेक्टिव, हाउ शुड वन डील विद अ क्लाइंट, एंड फ्रॉम अ क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव हाउ शुड दे टेक अ रीडिंग इन अ, लाइक ठीक है, व्हेन यू से गाइडेंस है तो गाइडेंस वाले फॉर्म में लेना चाहिए, एंड शुड दे बी वेरी चिल अबाउट व्हाट द रीडिंग इज, और लाइक बहुत ज्यादा ऐसे बिल्कुल ना उसको पत्थर की लकीर लेके नहीं चलना चाहिए. नहीं, पत्थर की लकीर नहीं लेकर चलना चाहिए. सी एवरीथिंग इन एक्सट्रीम इज हार्मफुल. ठीक है, हर चीज का ओवर गाइडेंस भी अगर आप ले लो, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, बिकॉज यू आर जस्ट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन. देर आर सिचुएशंस, देर आर टाइम्स इन देयर लाइफ ऑल्सो, रीडर्स लाइफ ऑल्सो, वेर इन दे आर नॉट इन द बैलेंस स्टेट. उस टाइम पे वो क्या गाइडेंस दे जाता है और आपने अपनी जिंदगी उनके ऊपर छोड़ रखी है. यू हैव टू हैव दैट बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, बी इट अ रीडर, बी इट अ क्लाइंट. दोनों को ही बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होनी चाहिए. इफ यू थिंक, इफ एज अ रीडर व्हेनेवर आई फील दैट दिस पर्सन इज गेटिंग ओवर इनटू दिस स्टफ, बहुत ज्यादा वहम के अंदर में आ रहे हैं, तो मैं उनको बहुत कह देती हूँ यार यू नीड टू टेक अ गैप, यू नीड टू टेक अ ब्रेक ब्रो. मतलब ये नहीं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स. हाँ, नॉट ओनली जस्ट फ्रेंड्स, बट अब मैं बहुत एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. ये किसी के नोन में ही था मेरे. सो दे वर ऑल्सो इनटू वास्तु, एंड वो वास्तु की हर एक चीज को इतना प्रिसाइसली बैलेंस करने के उसके अंदर में आ जाते थे कि उनकी 6th स्टैंडर्ड की डॉटर मुझे मुझे नहीं, उन्हीं को कॉल करके पूछ रही है, पापा मम्मा इज गेटिंग हेडेक, टेल मी विच ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी मूव्ड. सो दैट इज द एक्सट्रीम. ठीक है, इतना नहीं घुसना चाहिए. मतलब वी शुड टेक
tarot and all the other occult sciences, only like we should deal with them, or we should take guidance for very major probably decisions that can have a very serious repercussion impact. in your life. If something goes wrong in that, something like it'll have a very serious repercussion. खाली उन चीज़ों के लिए we should get consultations from a reader or from a vastu expert or from a numerologist. Absolutely. हर छोटी छोटी चीज़ के लिए we should not run after them. अब आपको नॉर्मल हेडेक है, ठीक है, आज बॉडी एक है, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं, फिर मतलब until and unless कि It's extreme. एक इशू मेरी लाइफ में, हेल्थ इशू मेरी लाइफ में surpasses से 5 days 6 days, मैं तब उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा. नाउ मेरे को अगर मतलब फीवर के केस में भी अगर हम देखें तो पता है कि यार 3-4 दिन में मैं बेसिक मेडिसिन लूंगा, 3-4 दिन में, या 1 दिन 2 दिन में भी ठीक हो जाएगा. अब अगर वो चीज़ बहुत लंबी चले, मैं उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा कि हाँ डॉक्टर अब ऐसे इतना टाइम हो गया, मेरे को ठीक नहीं हुआ. बराबर. So that is also with us. We are also kind of doctors for you. ठीक है, स्पेस के डॉक्टर्स हैं, या we are on that terms wherein again we are just doctors. We are not वहम वाले लोग जो डराना एकदम वाला काम करते हैं. So we are often misguided to be, यार ये तो डराएगा, यार ये तो ऐसा कर जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. We are just like doctors. We are treating you on your psychological level. मतलब हम बहुत मल्टीफोर्स काम करते हैं अगर आप तमीज से हमारे पास आ रहे हो तो, honestly. ठीक है, we play as a counselor to you. हम जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट इट्स मेजरली अबाउट द काउंसलिंग सेशन, द गाइडेंस सेशन. ठीक है, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, देयर आर सर्टेन इमोशंस दैट यू आर गोइंग थ्रू व्हिच द मेडिसिन कैन नॉट टेक केयर ऑफ. So we heal that. We kind of guide you with those things which can help you release those emotions. So we are also doctors. ठीक है, डॉक्टर्स के पास जब इमरजेंसी होती है या कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है तब ही लोग आते हैं. ठीक है, मेंटल ब्लॉक हो गया कि अब नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स टेक अ गाइडेंस. पहले अपना सोचो तो सही. बेसिक रिक्वायरमेंट इज क्या? अपनी तरफ से थोड़ा हाथ पैर तो मारो. ट्राई टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू कम, देन वी आर देयर. मतलब इवेंचुअली हम वापस बिल्कुल इनिशियल उस पे चले गए कि कोई चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो तो इनिशियल स्टेप्स तो आप ही को लेने पड़ेंगे. नोबडी एल्स विल टेक देम फॉर यू. आपको लाइक टू रीच समवेयर यू हैव टू एटलीस्ट गेट आउट ऑफ दैट बेड और स्टैंड अप, एंड देन यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट लोकेशन, डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू गो. आप नो, यू कांट जस्ट सिट ऑन अ सीट एंड बी लाइक मेरे को वहाँ पहुँचना है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं वहाँ पहुँच. दैट डज नॉट वर्क. ठीक है, स्पिरिचुअली यू माइट रीच देयर, बट फिजिकली तो आप उधर ही बैठे हो. ओके, ठीक है. वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स कि मेरे को जो ओके, आई पिक ईच क्वेश्चन एक एक करके. If somebody has to get a reading done, how do they figure out कि probably this specific reader is best for me to get like आगे अपनी एक, जैसे होता है ना कि आप एक डॉक्टर के पास, एक आपका एक फैमिली डॉक्टर बन जाता है. बराबर. कि आप हर बारी कुछ भी होगा पहले उनको ही कंसल्ट करोगे. That ways how does a person pick a reader कि हाँ यार ये मेरा रीडर एकदम परफेक्ट है, मैं इसी के पास बार बार इसी को ही कंसल्ट करूंगा. या अगर आपने कोई बंदा पहला अपनी रीडिंग लेने जा रहा है, हाउ डू दे पिक कि हाँ ठीक है, दिस इज प्रोबेबली वन रीडर हु आई वुड कंसल्ट विद. एंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज आज के सोशल मीडिया, हाई सोशल मीडिया लाइफ में देर आर सो मेनी एप्स. आपकी एस्ट्रो टॉक हो गई, एस्ट्रो सेज हो गई, एस्ट्रो गुरु हो गई, प्रोबेबली एवरीथिंग दैट इज एस्ट्रो is related to astrology or anything. Astro boy भी शायद एक टाइम पे बन जाएगा. But how does one pick कि हाँ यार ये मेरे लिए, ये रीडर मेरे लिए परफेक्ट है? See, one has to take experience. ठीक है, या तो आपके किसी नोन ने ऑलरेडी किसी से काम किया हुआ है, रीडिंग ले रखी है. So one is via referral. Ask them how was the thing with, how was the session with you, या कुछ भी है. So first is by reference, second is by experiencing.
until and unless you don't experience the reading with few readers, you won't get to understand कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, because एक वाव फैक्टर आना चाहिए रीडिंग के टाइम पे. मतलब यू शुड फील सम शिफ्ट इन योर एनर्जी, योर वाइब, योर माइंडसेट, समथिंग, some sort of shift should happen when you're getting a reading done. ठीक है, तो वो तब भी महसूस कर पाओगे जब तक आप 2-3 जनों से जब मिलोगे, तभी आपको समझ में आएगा. सो ऑलवेज बी रिसेप्टिव टू ट्राई द रीडर्स. मतलब मैं ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी रीडिंग करने का तरीका डिफरेंट होता है, गाइडेंस देने का तरीका डिफरेंट होता है. There are people who mix certain modalities within that span of time. So experiencing is the only way. And जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, जहाँ पे कनेक्शन फील हो कि दिस पर्सन इज वर्किंग आउट गुड, वहाँ पे यू कैन गो. रेस्ट, एज यू सेड, सोशल मीडिया पे आजकल इतने सारे लोग हैं, दे डू ऑफर फ्री रीडिंग्स ऑन द सोशल मीडिया वेबसाइट. यू कैन ट्राई. ऐसे जहाँ पे आपको रीडिंग रेजोनेट हो, व्हाई डोंट यू जस्ट गिव देम अ ट्राई विद अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग. बिकॉज जो सोशल मीडिया पे कर रहे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी जेनेरिक वन. ठीक है, बट कई बार वो जेनेरिक वाली रीडिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो जाती है. इफ यू फील दैट इट इज रेजोनेटिंग, यू कैन टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन विद देम, बट ऑलवेज ट्राई. मतलब ये नहीं कि यार मैंने तो टैरो कार्ड रीडर से ट्राई किया, मजा नहीं आया, ये सब बकवास है. ट्राई करो यार, और एक्सप्लोर करो. देयर आर पीपल. Okay. In the last span of 1 year, I have seen a lot of tarot readers like emerge out of nowhere on Instagram. Everyone is uploading reels of doing some reading or the other. That's law of attraction and AI working for you. Thank you. नहीं, मेरा honestly. मेरा क्वेश्चन कहाँ कहीं और का था, उसको कहीं और ले गई. वाह दीदी वाह. नहीं, इन रियलिटी मतलब मैं अगर क्रिस्टल्स के बारे में सर्च करती हूँ, मतलब आई वांट टू फॉलो. नहीं, सॉरी, दिस इज व्हेन आई वाज नॉट लुकिंग फॉर टैरो और क्रिस्टल्स और एनीथिंग. आउट ऑफ नोवेयर मेरे को ये चीज इंस्टाग्राम पे दिखनी शुरू हो गई कि एकदम से ही, मतलब आज मैंने एक रीडर का देखा, कल 2 का देखा, फिर 3 का देखा, एंड एवरीवन इज डूइंग रीडिंग्स रिलेटेड टू लव लव लव. बहुत रेयर कभी कोई आएगा जो करियर से रिलेटेड कोई बात कर रहा है या कुछ. बट माई क्वेश्चन इज, शुड वन एक्चुअली take these readings seriously, or like you, tarot के केस में you need to have a 1-to-1 session with somebody and then like only take those readings very seriously. So जो रील्स शेयर कर रहे हैं, जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर्स ऑन देयर इंस्टाग्राम, दैट ऑफर्स यू द पर्सपेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो किस तरीके से रेमेडी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या किस तरीके की रीडिंग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. सो टेक इट एज अ टूल टू मेजर देयर स्किल सेट. ठीक है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक 1-to-1 कंसल्टेशन विद द पर्सन जिसके आप रेजोनेट ज़्यादा कर पा रहे हो. उसके साथ 1-to-1 कंसल्टेशन लोगे तो आपको एक तरीके से पर्सनलाइज सोल्यूशन मिलेगा. यू विल गेट योर द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, राइट? सो it is better always to have that 1-to-1 call rather than just depending कि आज reel में ये post हो, because that is a very generic stuff. ठीक है, that is being offered, that is being viewed by billions of people, and वो किससे resonate कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, and your situation is pretty different. तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. So take that content as a content to consume, to understand what sort of reading that person will offer. And then if you feel that connection, you can always take a 1-to-1 session with that person. कई tarot card readers, they offer one question free of cost also on their reels, on their lives and all that stuff. So you can definitely try that also. वहाँ से again you will get a gist कि किस तरीके की reading वो आपको दे रहे हैं on a personal note. So that can again be used as a tool to understand. बाकी have a 1-to-1 session. So basically, अगर if these reels help you develop a trust factor, they should only be treated as a trust factor kind of a thing. कि
ठीक है ये शायद मैं इनके साथ रेजोनेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, एंड टू सम एक्सटेंट कि ठीक है टू गेट अ इन डेप्थ नॉलेज या इन डेप्थ आइडिया कि हाँ जो चीज़ आपने बोली है क्या ये मेरे साथ होगी या नहीं होगी, ओनली इन दैट केस वन शुड अप्रोच अप्रोच दैट रील, दैट टू मतलब रील को एक खाली इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि ठीक है अगर मेरे को किसी से उससे कंसल्टेशन लेनी है नहीं लेनी, बट यू शुड नॉट जस्ट टिक कि हाँ उस रील में जो बोला गया है वो एकदम सही है। वही पत्थर की लकीर वाली बात। पत्थर की लकीर तो मानो ही मत। पत्थर की लकीर तो क्या आप 1-to-1 सेशन भी ले लोगे ना, तो मैं जो गाइडेंस दूंगी वो भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यू स्टिल हैव दैट एनर्जी इन यू टू चेंज योर स्टफ, टू चेंज योर डायरेक्शन। आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है, यू कैन स्टिल मेक चेंजेस इन योर लाइफ। ठीक है, सो पत्थर की लकीर कुछ नहीं होता है। पत्थर की लकीर जो आप सोच रहे हो वो ही होता है। द डे यू कम आउट ऑफ योर थॉट पैटर्न, योर थॉट प्रोसेस, and you just depend upon your willpower, you can change yourself, your destiny also. So it is कि ये सारे सिर्फ मीडियम है टू अंडरस्टैंड कि यार वो पर्सन किस तरीके से आपको रीडिंग दे सकता है, किस तरीके के सॉल्यूशंस दे सकता है। एंड अगर सी अ पर्सन विल डू रील्स जिसमें वो एक्सपर्टीज है, so if you are not looking for love related stuff, you won't go to a person जो love की reels ही दे रहा है। if you are looking for career related stuff, you will approach other person, उसके ऊपर ही आपको trust आएगा कि हाँ ये मुझे काम से related reels दिखा रहा है, and when I am continuously seeing मुझे थोड़ा बहुत resonate भी हो रहा है, let me connect with that person. So that is how again social media is majorly for marketing purpose, understand with that perspective also. तो मार्केटिंग ही वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उसी चीज पे फोकस करेंगे जिसपे उनकी एक्सपर्टीज है। तो हमको भी देखना है, अपना एनालिसिस करना ही पड़ेगा आपको कि किससे कनेक्ट करना है, किससे नहीं कनेक्ट करना है। एंड यस, टू नॉट डिपेंड ऑन द रील्स, मतलब सिर्फ जो गाइडेंसेस उसके अंदर में मिल रही है, डू नॉट डिपेंड अपॉन दैट। टेक अ 1-to-1 कंसल्टेशन फॉर बेटर क्लैरिटी एंड पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन। Am I being too hard on you? No. मतलब why are you fumbling? What's wrong with you? आप ठीक तो हो ना? हो जाता है। Please थोड़ा पानी पी लो, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन होती जा रही है क्या? नहीं, it was like a just pulling your leg. ठीक है। Okay. It was a tongue twister. No, it wasn't. For me. It was just that you were too deep in your thoughts कि you could not figure out कि क्या बोलना, that mind muscle connection थोड़ा सा confused हो गया। सर्किट में कुछ हो गया झोल। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, it happens. I understand. I also go through a lot, so it's okay. So I guess one should not believe in everything that you see online. थोड़ा बहुत आपको उस पे भी you need to work a little on it. If it's right or wrong or whatsoever, and again I believe it all boils down to the fact कि कोई चीज अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, then you have to work towards that. Absolutely. अब for example if you see love related क्या कहते हैं रील, टैरो से रिलेटेड ही लव रिलेटेड रील कोई आप देख रहे हो, एंड इफ यू आर सिंगल इन लाइफ, दैट डज नॉट मीन कि लाइक it is clear indication that this reading does not resonate with you. हाँ. And other way of looking at it is if you are involved with somebody but you're not very like sure कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है नहीं है, in that case if something comes out and you feel कि हाँ जो उन्होंने चीज़ें बोली है वो आपके रिलेशन के साथ रेजोनेट कर रही है, like you can draw a parallel between both the things, probably then you should believe कि हाँ ठीक है this thing might be in my favor or they might be थोड़ा सा talking. लॉजिकल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। वो अपना यार हमारे को ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंशिएशन है, इवन इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, हमारे पास सोच की शक्ति है, उस चीज का हमें बेनिफिट लेना चाहिए आई गेस। सो वी शुड अंडरस्टैंड, सोचना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए सही है क्या नहीं है। इतना तो आई थिंक भगवान ने हमारे को स्किल सेट दिया हुआ है, ठीक है। एंड शायद कहीं ना कहीं everything, a certain amount of risk is involved in everything you do. Like for example अगर मैं love की बात ही करूँ, I'll take examples of love and career both. love के केस में if you like somebody and you see a reel की जिसमें like
it says कि you are involved with somebody but अभी तक कुछ serious नहीं हुआ है and all blah blah blah, you take a step and the things will work in your favor. Again, like it is up to you if you want to take that step or not. वो risk तो आप ही को लेना है, नहीं लोगे तो ठीक है, that moment will pass. Right. Probably शायद इस moment में अगर आप वो step ले लोगे, it might work in your favor, but वो risk analysis शायद थोड़ी आपको करने की जरूरत पड़ेगी इस केस में. में तो कंसल्टेशन लेना ना, डाउट आ रहा है अपने अंदर में. हाँ. वो रील देख के it clicked, ठीक है, an idea clicked that I should try, but whether you should go for it or not, just to have a clarification, have a consultation with that person. So it could be like, I was watching your reel and this kind of a little bit resonated with my situation. फिर उसके हिसाब से just talk to them and take a guidance session with them. So that is important ना. Just एक generic reel के basis के ऊपर you cannot start taking steps in your life. हाँ, मतलब blindly किसी भी चीज को follow नहीं करना है. It's not a cult कि आपने ये follow करना ही करना है. Absolutely. Until unless you get that, like you get a feeling from inside कि नहीं यार ये चीज मेरे को करनी है. Like this is how I got into the whole tarot and astrology वाला aspect कि I was in a situation for which I needed an answer. Right. I saw so many reels and everything suggested in that specific direction कि हाँ मतलब this thing will happen, this thing will happen, this thing will happen, and to get an idea कि हाँ क्या ये चीज सही में मेरे साथ होगी, then I took that step of getting my first consultation from the person. And ठीक है, like things did not work in my favor, probably for the best. Right. But yes, मतलब ठीक है, just to get a clarification for a situation, you should like take a consultation with somebody. Yes. Okay. Good. At least this proves that I am not an idiot. I am a risk taker. Sorry, maafi. Should everyone learn tarot, if not for monetary gains, but as a self-development tool? See, there is a protocol, as I mentioned earlier also, that you need to work on yourselves also before doing a reading, be it for others, be it for yourselves. If you can follow that protocol on daily basis, or at least before doing a tarot card reading session, it's okay to learn. Okay, it's a skill set. It's never too late to learn any new skill. ठीक है, and it's perfectly fine if you want to learn, क्योंकि ये guidance तो आपको देगा ही देगा. But कई बार क्या होता है, when you yourselves are a reader and you're reading for yourselves, you need to again draw a line between your conscious and subconscious mind, because we tend to get again attached to a situation or a solution specifically. हम उसके बारे में सोचते हैं, हमको एक desired result चाहिए होता है, हम bias हो जाते हैं. ठीक है, तो अपने situations में generally you get biased, and that is when the readings kind of start bending. You bend the reading according to your card. दिख भी रहा होएगा ना कि जिसके अंदर में दिख रहा है there is going to be a downfall, आप उसको read करोगे, हम फिर उठेंगे. Are you talking about the tower moment? Yes. So that happens. You don't want to take the pitfall for yourselves. You just want everything to be very bright and sunny and positive for you. So you have to draw a line for yourselves. उसके अंदर में boundary create करनी ही पड़ती है. If you can create, then learn. Before you start your tarot reading session, you need to ground yourself. Absolutely. And like find peace in that say 15-20 minutes का moment when you're doing your reading. उस time पे be in a state of trance. If you like try and be in a state of trance where your day-to-day troubles don't get the better of you. See, and the 15 minutes of trance is for somebody who practices this on daily basis almost. Okay? If you are just learning it for yourselves, then I doubt कि वो चीज़ possible रहेगी, because 15 minutes of trance won't be easy for you to attain. या तो आप बहुत practice कर रहे हो, meditation कर रहे हो, regular basis पे कर रहे हो, and you are taking this for your personal reading, okay, you can do it, because meditation will be a background for you. It will be an environment for you in your body. It will be for something for you that you are developing for yourselves. ठीक है, but
प्रोफेशनली कर रहे हो तो आप जनरली जितने भी हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जितने भी ऑकल्ट के अंदर में हैं, दे प्रैक्टिस दीज रिचुअल्स ऑन डेली बेसिस. सो दैट इज व्हाई दे आर प्रिपेयर्ड लाइक इन 5 minutes बिफोर द रीडिंग ऑल्सो. ठीक है, बट इफ यू आर नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिशनर, यू आर टेकिंग इट फॉर योर सेल्फ, आपको मेडिटेशन एंड ऑल दैट स्टफ फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू क्रिएट दैट डिफरेंस बिटवीन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. सो दैट इज मैंडेटरी. No, I get your point, but what I want to understand is like, see, people. The reason for asking this question is everyone has a very different approach to attain peace in life. Somebody would do yoga, somebody would go for a walk, somebody would probably listen to some certain type of music. I love to go to the gym, like during my every day, like that 1.5 hour that I have for myself, that I spend in the gym is the time when I am most peaceful. I don't think of anything, I don't have any thoughts in my head. I am just doing my exercises and attaining my nirvana at that time. So but that does not help you in your self development thing, like self ठीक है क्या maximum मिल रहा है. But that is a meditation for you. ठीक है, because you can feel that nirvana, that wherein you are not thinking about any stressful daily routine, you are just yourself, you are enjoying that, your soul is enjoying that, so that is kind of a meditation for you. ठीक है, चाहो ना चाहो, मानो ना मानो, वो कहीं ना कहीं कर रहा है. जो बंदा कहीं जैसे कई पेंटिंग्स करने पे बिल्कुल अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, दे दैट इज मेडिटेशन फॉर देम. एंड जो 9 to 5 की अपन जॉब करते हैं जहाँ पे आई कैन नॉट कॉल दैट इज मेडिटेशन. ठीक है, वाई? बिकॉज you are struggling, you are not having mental peace, you are just in stress throughout the time, pressure है आपके ऊपर, so that cannot be meditation. Meditation is doing something which releases all that stuff. So again, मेडिटेशन के अंदर में जैसे हम वही मैं कह रही हूँ, सिर्फ वो 15-20 मिनट बैठना, ध्यान लगाना इज नॉट जस्ट द ओनली वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन. वो जहाँ पे आपको पीस मिल रहा है, दैट इज मेडिटेशन. इफ यू आर फॉलोइंग समथिंग ऑफ दैट ऑन डेली बेसिस, यू आर परसुइंग अ हॉबी विच प्लीजेस यू, योर सोल, देन ऑल्सो यू कैन डू इट. तभी भी देयर इज गोइंग टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, because you are nourishing your soul with some activity. But it's a good self development tool, like Yes. doing tarot, not only tarot but anything of that sort, anything that is directly or indirectly connected to some or the other occult practice that helps you develop. Absolutely, it's a skill. It's a life skill. हम रेकी प्रैक्टिशनर्स अभी आपने देखे होंगे, रेकी के एकदम से इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज रेकी इज हेल्पिंग यू टू बैलेंस योर बॉडी लेवल्स. योगा इज अगेन टू बैलेंस योर माइंड, बॉडी एंड सोल. तो वो चीजें सीख रहे हैं ना लोग. तो टैरो इज ऑल्सो वन ऑफ दोज टूल्स विच इज जस्ट अ गाइडेंस फॉर योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस. सो इट्स ओके टू लर्न इट, यू कैन यूज इट. बस हाँ ये है, इनिशियली जब आप सीख रहे हो, जब आप अपने लिए रीडिंग्स कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा लुक आउट करने की जरूरत पड़ेगी कि आपकी रूटीन उस तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, या आपको रीडिंग से आपके जो आपने रीडिंग करी वो चीज़ रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है. सो थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी डे टू डे के अंदर में. दैट इज इट. Okay, now since you brought up Reiki in your in the conversation, I want to understand something. Does Reiki also work via social media? Because I have come across a few shorts, some reels where a Reiki practitioner is doing their work, and does that also help somebody, or is it just like hocus kind of a thing? नहीं, देखो 1-to-1 के अंदर में प्रैक्टिस इज डिफरेंट एंड सोशल मीडिया के ऊपर में प्रैक्टिस इज डिफरेंट. ठीक है. My question is social media centric. 1-to-1 में तो मुझे भी पता है, like if somebody, but if you are somebody who is an empath, or if you are doing meditation and you can sense that they are actually working on the energy वाला portion, because I have seen कुछ एक लोग blockages clear करने के लिए रेकी कर रहे हैं on social media. They are making hand movements in such a way that you can
feel that negativity is being removed from your body. It happens. The reason why I'm asking you this question is because I understand Reiki as a practice is directly connected to energies. Right. Now you can't like transfer energies over a social media network. In person, I understand energies can be transferred through air, through all these mediums, light, air, इनके थ्रू आप कर सकते हो. बट सोशल मीडिया पे आप ये कैसे करोगे? अब मैं कैमरे के सामने खड़े होके मैं कुछ भी कर लूँ, how would that like transfer or how would that work? It works. मतलब आप अगर see energy can travel anywhere. And specifically intent भी बहुत matter करती है. I have felt that personally. मैंने कुछ reels मैंने भी check out करी थी wherein I could feel and I could see a shift in myself also. So I personally believe that this is true and it happens. And अब ये होती कैसे? It is kind of a very complicated stuff, I would say, because it's all energy in the universe. ठीक है? When you send a message to the universe responds onto it. कि वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको उसका जवाब मिल ही जाता है. Similarly, when you are sending energies to somebody, जो हम energy balls create करते हैं या ये when we send the healing energy to other people, so I don't know, but they work. अब उसका लॉजिकल रीजनिंग कह लो या लॉजिकल आंसर मेरे पास नहीं है. But there is the shift, there is the energy. Hey, I am not looking for a logical answer from you. I'm just trying to understand if it actually works or not. It works. Again, depends on the intent of the person, but it works. आप कभी साउंड बोल्स के भी सुनोगे मेडिटेशन. अगर आप फॉर एग्जाम्पल चलो जो हम गाइडेड मेडिटेशन सुन रहे हैं, दैट इज द हियरिंग मीडिया दैट वी आर यूजिंग. बट जो मेडिटेशन बना भी रहा है ना, ही हैज टू बी इन दैट ट्रांस स्टेट टू एक्चुअली मेक दैट मेडिटेशन वर्क फॉर यू. सो उसका एनर्जी उसके अंदर में जा रहा है. That is why you can see a shift in yourself also while you're listening to that particular music. Now when on screen also, जैसे कोई मूवी के अंदर में कोई सीन चल रहा है, रोने धोने का चल रहा है, you'll see a shift, instant mood shift in yourself also. अब वो रियलिटी में थोड़ी ना हो रहा है. That is also happening, that has been shot in the camera, but still you can feel that emotion. It's energy. Similarly, if that person is shooting something on the screen, he's playing with the energy. वो अपने रेकी energy send कर रहा है, healing कर रहे हैं. But when you're watching it, you'll feel it. So that is how these things work. Okay. मतलब it's not necessary to like you cannot always find a reasonable answer to an occult practice. Like it is like है होगा. It all comes down to your belief also शायद एक कहीं ना कहीं. Belief system तो मतलब it's kind of a main thing. ठीक है? If you're believing in occult, you'll get the results. If you're not believing in occult, you won't get the results. If you are purely logical person जिसको हर चीज में reasoning चाहिए, आपको reasoning कई चीजों में मिलेगी नहीं. There is quantum leaps happening in today's time. Quantum चल रहे हैं, batch flash चल रहे हैं, आपके frequencies के ऊपर में working हो रही है. तो ये सब चीज़ें all energetic stuff है. वो तो आप जितना डिटेल में घुसते जाओगे, जितना करते जाओगे, सबके रिजल्ट्स आर वेरिड. कुछ जो टैंजिबल स्टफ है, मेडिसिन है, जैसे हम होम्योपैथिक लेते हैं, होम्योपैथिक टैंजिबल है. वैसे तो हम लिक्विड डालते हैं. लिक्विड इज द मेडिसिन, मेन मेडिसिन. जो हम गोलियां डाल रहे हैं दैट इज शुगर. वो तो जस्ट एज अ कैरियर मीडियम है. मेन तो काम उसने करना है, लिक्विड ने करना है. सो tangible stuff is a little different, which works on your body level, but जो intangible stuff है that works on your energy level. तो वो difference होता है whether you sit in front of the practitioner or you don't. अभी आजकल जैसे tarot card reading भी हो गया है, it's purely online. ठीक है? I get consultations via online. पहले ये होता था कि you have to be in front of the tarot card reader to get the energetic exchange. But अब
क्या है, आप ऑनलाइन बैठे हो, देयर इज स्टिल एन एनर्जी एक्सचेंज, आई कैन फील अ कनेक्शन विद दैट पर्सन. सो उस पर्सन के साथ जब मैं एनर्जेटिकली कनेक्ट हो रही हूँ, आई कैन डू अ रीडिंग फॉर दैट पर्सन, देन व्हाई कांट आई हील दैट? Okay. Over the years, have you seen any noticeable change in the trends of tarot or any of your other or in occult science altogether? एब्सोल्युटली. व्हेन वी वर किड्स, आई थिंक उस टाइम पे बहुत ही स्कैरी वर्जन था इन सब का. Hmm. ठीक है, अंधविश्वास वाला वर्जन था. आज के टाइम पे पीपल हैव डेवलप्ड दैट ट्रस्ट दैट इट इज गाइडेंस वाला चीज एंड इट हैज अ लॉजिकल साइड आल्सो, एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इट इन अ डिफरेंट मैनर. अभी भी कई लोग हैं जो थोड़े से ये हो जाते हैं कि यार it's not something which we should go for. It's ये सारे वहम है and all that stuff. But at the back of the mind, somewhere or the other, they do want to get their readings done. उनको सबको curiosity होती है कि what is there in our destiny, what is there in store for us. Everybody is curious आज के time पे, and that curiosity somewhere I believe कि is something which has kind of is developing that trust back, because हम लोग भी educated लोग हैं पहले से. We are also going into the depths of the sciences to understand what the logics are. So there is a shift. Proper institutes है जो हमारे को सिखा रहे हैं, proper centers है जो सारी इन चीज़ों के बारे में knowledge दे रहे हैं on a clearer aspect. So जो myths थे वो bust हो रहे हैं. So वो clarity आ रही है धीरे धीरे. अगर पहले जैसे बोलते थे रात को झाड़ू नहीं लगाना है, वो कम हो जाता है, वेल्थ कम हो जाती है, तो उसके लॉजिकल रीजनिंग हमको धीरे धीरे पता चलनी शुरू हुई. तो वो अंधविश्वास से लॉजिकल स्टफ बन गया कि यार पहले के टाइम पे लाइटें नहीं होती थी. ठीक है, तो झाड़ू गिरे तब मना करते थे कि पैसे गिरे होंगे तो वो भी बाहर निकल जाएंगे. अब लाइटें हैं, सो दैट लॉजिक डज नॉट अप्लाई नाउ. तो आप रात को झाड़ू मार सकते हो. So इस तरीके से there is a shift. I can see that shift nowadays. So people are getting back into this, but with logics. If you are being transparent with them, they'll definitely trust you. So transparency मुझे पहले से लगता है पहले से improve हुई है इस field के अंदर. मतलब somewhere or the other you need to take a leap of faith. But again, taking that leap of faith, keeping in mind you are coming across somebody who can give you a logical explanation for whatever they are saying. Absolutely. As long as you're getting a logical explanation, taking a leap of faith is not going to harm you in any which ways. ऐसे मतलब ये thought process हो चुका है लोगों का already. So they are with that mindset कि yes, if we are getting that logical stuff, reasoning मिल रही है, then they get comfortable, because I have experienced that. Whenever I am giving that logical reason to my clients, they get satisfied and they are okay, we are fine with that, we now understand, we'll do that remedy. मतलब ठीक है, I mean I will connect, I'll go back to my earlier question and I'll try to connect from a beginner's point of view. If somebody is taking a reading from you and you by chance get a negative reading, but if you can you can easily communicate with your client, keeping in mind you're giving them a very logical reasoning for what you're saying, so that they also understand right कि whatever you're saying is beneficial for them in the longer run and they are not being your enemy or anything. कि मतलब obviously बात है यार, किसी की reading करके मेरे को क्या मिल रहा है? बराबर. गालियाँ और वैसी चीजें शायद मिल रही है कि मैं if you are taking a reading from me and I tell you something negative, तू शायद मतलब maybe you abusing that you'll do towards me is going to reduce and you'll understand कि where I'm coming from. Absolutely. I also feel that. मतलब यही चीज है, क्योंकि everybody is looking for solution. If somebody is approaching us or a occult wala person, they are looking for a solution. If we are able to give them that clear picture, they'll be satisfied. अगर वो चीज़ आप गोल गोल घुमाई जा रहे हो, नहीं आपके 2 साल बाद अच्छा टाइम चलेगा, 2 साल बाद वो फिर फेस कर रहा है ये वाली चीज़, और फिर आप कहते हो नहीं अभी थोड़ा सा टाइम और है, और 2 साल लगेगा, ओके क्या पागल बना रहे हैं, ये पैसे गर्म कर रहे हो, मेरी जेब खाली कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है. हाँ,
वो चीज होगी भैया, तुम एक बार बता दो भैया इतने तक तुम्हारा टाइम नहीं थोड़ा औखा है, या दिस इज द लाइफ दैट यू आर गोइंग थ्रू, यही ऐसा सिचुएशन रहेगा, तो बंदा पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाता है कि यार दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव टू फेस थ्रू आउट माई लाइफ, लेट्स कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट लेवल, या लेट्स सेटल विद दैट थॉट पैटर्न, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं उससे, तो बंदा फिर वो होपफुलनेस से हट के ना वो सोल्यूशन बेस हो जाता है। हाँ मतलब वो इम्प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकलिटी पे शायद आ जाता है इंसान की हायर, व्हेन यू नो कि दिस इज व्हाट द फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर मी, एंड यू रादर देन लाइक कीपिंग रेजिंग योर होप्स वे टू हाई कि नहीं मेरे साथ आज अभी ऐसा हो रहा है, आगे चल के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत अच्छी हो जाएगी, लाइक रादर देन गोइंग फॉरवर्ड विद दैट माइंडसेट, यू स्टार्ट गेटिंग प्रैक्टिकल इन योर लाइफ कि ठीक है यार प्रॉबेबली मेरे को एक चीज पता है कि मेरे साथ ये होने वाली है, मैं उसको कर्व करने की कोशिश करूं। एब्सोल्युटली, सो वो एक्शनेबल स्टेप्स आ जाते हैं आपके साथ में, सो योर माइंडसेट चेंजेस ऑटोमेटिकली कि यार मुझे अब इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकालना है, चल अब ये लाइफ तो ऐसी है ही है, छोड़ो परे, लेट अस वर्क ऑन दैट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स तो मेरे ऐसे ही रहने, छोड़ो परे, लेट्स फोकस ऑन बिल्डिंग आवर करियर, जहाँ पे हम क्या फोकस कर रहे थे पहले, मुझे अपनी रिलेशनशिप सुधारने, करियर जा ही जा रहा है। सो अगर क्लैरिटी मिल गई कि भैया ये खाना ऐसे ही रहना है तुम्हारा, फोकस ऑन योर करियर, सो आई शिफ्ट माई फोकस एंड ऑटोमेटिकली मेरा थोड़ा सा तो डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा वहां से, माई करियर विल ब्लूम, आई विल बी हैप्पी ऑन दैट फ्रंट एटलीस्ट। हाँ मतलब सी यू नीड टू, मतलब एक जैसे वो होता है ना, शायद कोई कहावत है पता नहीं क्या कि यू कांट हैव बोथ योर हैंड्स फुल एट ऑल टाइम, राइट, you have to let go something to keep something in your life, right, so it's not necessary that everything in your life would be blossoming all the time, kabhi ups and down is a regular pattern in life, that is you life. need to that is life, and you need to understand कि ठीक है यार आज मेरे पास अगर ये चीज है, मैं अभी दूसरी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ताकि वो मेरी लाइफ में आगे चल के वो भी ठीक हो जाए, बराबर, rather than keeping it that way कि नहीं यार मेरे को यही चाहिए, वही अगेन शायद डेस्परेशन वाली बात होगी कि डेस्परेटली एक ही चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे लिए ये सही है या ये सही नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, you if something if you get a negative reading in your whenever you are doing a reading, something negative comes up, be open with your client and tell them everything with a logical reasoning and everything will be all right. Right. After that it is up to the person any which ways कि उसने क्या करना है, he wants to take your reading or he wants to. Okay, Sakshi, tell me what is that one funniest myth that you ever come across, like कि randomly कोई एकदम pop up हुआ in your life and said something to you and just left you thinking कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है? ये आई वुड से कई बार लोगों ने मेरे से पूछा है, आई वुड से कि पता नहीं मतलब बिलीफ सिस्टम है या क्या है, कई लोगों को ये लगता है कि हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या रेमेडीज अगर जो सजेस्ट कर रहे हैं या क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, इनसे हम अपना फेट चेंज कर रहे हैं, या जो हमारे लिए ऑलरेडी डेस्टाइंड है हम उसमें उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू क्लियर ऑन दैट कि ऐसा नहीं है। All we are doing is just we are removing the hurdles towards that destination. ठीक है, like for example, I'll take example of reaching to one location. ठीक है, for example, you want to reach to X location. You are standing at Y. अब Y से X पैदल जाओगे तो 2 घंटे लगेगा, गाड़ी पे जाओगे तो आधा घंटा लगेगा, स्केट्स चला के जाओगे तो 1.5 घंटा लगेगा। तो whichever way is suitable to you वो आप करोगे, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट काइंड ऑफ स्पीडिंग आवर स्पीड टू रीच दैट लोकेशन वाया हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। सो ये मैं पहले भी बोलते आई, दीज आर गाइडेंस, वी आर नॉट प्लेइंग विद आवर डेस्टिनी, वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज आवर डेस्टिनी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू make the path a little smoother so that we reach to that destination a little early or easily. Okay, can you see, you are taking whenever you talk about tarot, you talk from a guidance perspective. I take tarot as a prediction form. What is the difference between guidance and predictions?
See, guidance के अंदर में क्या हो जाता है, we are helping you out to understand the situation and how you can overcome certain habits, certain things in you as a personality, so that you can reach to that thing. ठीक है, guidance is that. When we say prediction क्या होता है, लोग उसको fortune telling के साथ में compare कर लेते हैं. Okay. So fortune telling is like nobody can predict your future. ठीक है, नॉट इवन आई, नॉट इवन गॉड. हम में से किसी को फ्यूचर अपना पता ही नहीं है, तो प्रिडिक्शन आप क्या करोगे? ऑल वी कैन से इज वी आर जस्ट गाइडिंग, वी आर जस्ट द गाइडेंस टूल कि हाँ दिस इज द पॉसिबिलिटी. अगर ये चीज पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह सकती ये होगा ही होगा. ये चीज पॉसिबल है, ये वाली चीज, दूसरी चीज पॉसिबल है. दोनों में से ये वाला चीज करना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स के अंदर. So that is what guidance is all about. ठीक है, I guess I get your point. Probably this is the reason why things did not work out for me when I was seeking help through tarot, because I was taking it from a prediction point of view. Whatever the other person is saying might turn out to be true. I was not looking at it from a guidance perspective. ठीक है, okay. All right. अच्छा लगा जान के. बहुत मजा आया. ठीक है, my next question to you again is coming from a newbie perspective. What are the situations, or what kind of people should a person, be it a newbie or a advanced level tarot reader, what kind of a situation or a person should they refrain from entertaining? See, initially तो it will be a little difficult for you to understand, but gradually when you'll start experiencing energies of people, when you'll start sensing what they are going through, you will understand that वो किस level पे play करना चाह रहे हैं with you in their readings. ठीक है, whenever you feel you are not comfortable with the person, do not do a reading for them. Whenever you feel that इनका criteria of question is something which I won't be able to answer properly, जहाँ पे भी थोड़ा सा self doubt आ जाए, वो चीज़ छोड़ दो. ठीक है, so like for example, I personally am not a relationship expert, so I do not take up relationship वाले questions कि मेरा boyfriend कब होगा, शादी कब होगी, ये सारा वो parameters पे I don't take up questions. My speciality is into careers, तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा comfortable, उन चीज़ों पे ज़्यादा focus करती हूँ. ठीक है, कई बार जैसे मेरे पास इनिशियल डेज के अंदर में कुछ एक क्वेरीज आनी स्टार्ट हुई, वेयर इन द लेडी कंसल्टेड मी asking for a weird question which I was not comfortable in answering, or I was not able to connect with that lady for some matter. तो मैंने उनका दोबारा कभी टैरो रीडिंग किया नहीं. I very politely said, ma'am, I would like to connect you to somebody else who is an expert in this field. I am not. आप उनसे सेशन ले लो. So जब आपको किसी की वाइब्स नहीं पसंद में आ रही हैं, या आपको उनके क्वेश्चंस क्लिक नहीं कर रहे, या कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या वो एक्सपर्टीज नहीं है आपकी, यू कैन ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग दोज क्वेरीज. The reason why I asked you this question was because even I won't say I'm not even an intermediate level tarot reader. I am very new right now, and जिनसे भी like who I was taking the classes from, they told us कि never do a reading that is connected to somebody's health. Like they gave me I guess two situations. First was when something is related to somebody's health, because and the logical reasoning that they gave was कि probably something they are facing something very serious, and कहीं वो तुम्हारी बात को लेकर ये ना कर लें कि यार अच्छा, if you're saying कि हाँ your whatever your health concern is, ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, and they take your word very seriously and they don't
टेक अ डॉक्टर्स कंसल्टेशन थिंकिंग कि यार ठीक है, ठीक तो हो ही जाएगा, कह तो दिया उसने कि थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, तो क्या ज़रूरत है मेरे को वो डॉक्टर की कंसल्टेशन लेने की. And the other situation they gave us was कि if somebody is taking a reading for a third person without that person's consent or knowledge, Right. कि आप जैसे कई बार रिलेशनशिप में होता नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आके पूछती है कि ओ मेरे बॉयफ्रेंड का की लाइफ में क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा नहीं होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. For that thing also they were like कि don't ever do a reading in that case also, कि when it's about a third person and they don't know about this thing, Right. you are free to consult if the third person gives you their consent कि हाँ you have my consent and you can answer this question for them. Until unless उनकी knowledge में ये बात नहीं जाती तब तक नहीं करने की जरूरत उनके लिए reading. See again, that is purely your comfort. You have to see कि आप किस चीज में, किस तरीके के questions में you are comfortable. So there is again no पत्थर की लकीर in terms कि क्या करना है क्या नहीं करना है. You for you also as a tarot card reader, always put yourselves as priority. जहाँ पे आपको comfort मिले वो करो, जहाँ पे नहीं मिले वो मत करो. जैसे I explained about myself, I'm not comfortable in taking relationship वाले questions. I don't take up exceptions. ठीक है. So you have to set your boundaries for yourselves. ये exceptions जो मेरी तरफ देख के बोला है ना कुछ एक लोगों के ले लेती हूँ मैं. या सही बात है. ठीक है. तो वो बाउंड्रीज आपको खुद को पता होनी चाहिए, वो आपको खुद को करनी पड़ेंगी सेट. और किस तरीके से करना, दैट इज प्योरली यू एज अ टैरो कार्ड रीडर. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू शुड ऑलवेज बी ऑन योर प्रायोरिटी. ओके. हेल्थ का लेना है नहीं लेना, दैट इज अगेन योर कॉल. कुछ लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरी हेल्थ कैसे रहेगी इन जनरल. सो यू कैन ऑलवेज टेक अप सच क्वेश्चंस. In general, it's going to be fine. It is just that if there is any issue also arising, that could be just because of stress. So you can actually ask them to control their stress levels and ask them to perform certain activities which can help them control their stress levels. So those health concerns can be taken up as per my comfort. मतलब मैं इस तरीके के ले लेती हूँ. मतलब एक तरीके से ये होगा कि even if you are taking up if you have बाय चांस ऐसे सिचुएशन में भी कोई सीरियस बात आ जाती है, योर कार्ड टेल्स यू कि समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग कैन हैपन विद समबडी इन फ्यूचर. अगेन इफ यू गिव देम अ लॉजिकल रीजनिंग टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, तो आप यू कैन डू दैट. मतलब अगेन जो उन्होंने मेरे को चीज बोली, ऑलवेज टेल योर कस्टमर दैट सी दिस इज अ गाइडेंस. हम ये नहीं कहते कि 100% ऐसा का ऐसा होगा. प्लीज टेक मेडिकल सुपरविजन ऑलवेज फॉर योर सिचुएशन. अगर आपको कुछ भी कंसर्न लग रहा है आप जाओगे. डू नॉट टेक दिस एज द ओनली थिंग दैट यू आर कंसल्टिंग. मतलब वही हाँ कि एक प्रॉपर रीजन उनको दे दो कि whatever they might face or if something that they are facing at this point of time, they'll get out of it, and to get out of this is the path that you have to take. Absolutely. Okay. कुछ क्रॉनिक वाली हो जाती है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. जो क्रॉनिकल स्टफ है उसमें आप डीलिंग नहीं कर सकते हो. बट अगर मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है दैट पर्सन इज हेल्थ इज सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी सम इमोशनल हर्ट या फिर ओवरथिंकिंग या प्रोफेशनल स्ट्रेस की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, then I can always guide them ना कि keep a check on this aspect of your life because that is going to cause you hurdles. Okay. Can you, what are the different kind of decks that are available in the market, and how should a newbie tarot reader pick their decks? See again, मार्केट में डेक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं. ठीक है. जेनेरिक है, आपके ओरेकल कार्ड्स होते हैं, एंजल कार्ड्स है, बथेरे डेक्स है. सो आई थिंक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग राइडर वेट एक ऐसा डेक है जो हर किसी के पास होता ही होता है. दैट इज द बेसिक and that is more clearer also. But if you are looking for some guidance on spiritual level or soul level, then there are oracle cards.
उसके अंदर में भी अगेन थोड़ा सा देखना पड़ता है विद विच कार्ड यू आर फीलिंग अ कनेक्शन. आजकल ऑनलाइन मीडिया के ऊपर में यू कैन हैव अ प्रीव्यू ऑफ द डेक्स. आप उनके कलर्स देख सकते हो, उनके टेक्स्ट देख सकते हो थोड़े बहुत प्रीव्यूज के अंदर में. सो विच एवर डेक कॉल्स यू, गो फॉर दैट. बिकॉज जो जैसे राइडर वेट ही है, इसी के बहुत सारे वर्जन्स आ गए कि उन्होंने यू नो इमेजरी चेंज कर दी. हल्का 19-20 में इमेज 19-20 में नहीं, का फर्क है. वो तो है ही है. उसके अलावा भी जैसे कुछ एक डेक्स सेम उसके ऊपर में वर्क कर रहे हैं विद 4 डिविजन्स, पेंटिकल्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गया, वॉन्ड्स हो गया एंड मेजर आर्केना हो गया और दूसरा हो गया. वो सेम पैरामीटर्स पे वर्क कर रहे हैं बट उनकी इमेजरी थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है. सो विच एवर डेक यू आर फीलिंग कॉल टू, गो फॉर दैट डेक. ठीक है, मेरे पास अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास यूनिकॉर्न्स का कलेक्शन है, मोनोलॉजी का कलेक्शन है. राइडर वेट तो मेरा फर्स्ट कार्ड था ही, और नहीं, फर्स्ट मेरा ओशो ज़ेन था. सो आई वॉज अट्रैक्टेड टू ओशो ज़ेन के इमेजरीज उस टाइम के अंदर में, एंड दे आर वेरी इन डेप्थ कार्ड्स. Not, you cannot just simply look at the imagery and look for symbols in that card. They are way beyond your visuals. So I had that inclination towards that. However, I use that card for just my personal reading. मैं clients के reading उससे नहीं करती हूँ. My clients की generally rider weight से करती हूँ. So purely your call, whichever deck you are getting attracted to. Rider weight is kind of a must for me. उसके अलावा whichever calls you, go for that deck. बट अगेन प्रोसेस वही रखना, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ही रखिएगा. कॉम्प्लिकेटेड अपने लिए मत करो कि हर डेक का मीनिंग भी अलग होता है. ठीक है, सो जिस साइड पे आप जाना चाहते हो, क्योंकि जब आप राइडर वेट से शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट समथिंग इज मिसिंग. सो टू फुलफिल दैट मिसिंग वाला, यू विल अप्रोच अदर डेक्स. तो पहले उसके लिए यू हैव टू बी फ्लुएंट विद वन डेक. सो वन डेक एट अ टाइम, ओके, फोकस ऑन दैट. एंड फिर ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फॉर अदर्स एंड डूइंग फॉर अदर्स, जब आपको तब कुछ कमी लगे तो नया डेक खरीदो, नहीं तो वो डेक की कलेक्शन बढ़ती जाएगी. No, I understand. Even with me, it was the same thing. I enrolled in tarot sessions first. पहला हमारे को जो सेशन हुआ, उसके बाद आई रियलाइज कि यार ये सीखने के लिए मेरे को कार्ड्स की तो ज़रूरत है. दैट इज़ व्हेन आई ऑर्डर्ड माई फर्स्ट राइडर वे कार्ड्स. इनके साथ शुरू करा, एंड देन आई वॉज गिफ्टिंग कार्ड्स टू समबडी ऑन देयर बर्थडे, एंड दैट इज़ व्हेन आई had an inclination towards these cards. Okay. Moonology, astrology and psychic cards. हाँ. तब मेरे and I felt like ठीक है, I need these cards, बड़े अच्छे से लग रहे हैं, and ठीक है, I can't like keep looking at these cards. कुछ नया होगा मेरे पास और भी सीखने के लिए, and that is when I first ordered I guess हाँ, moonology and astrology मैंने पहले ऑर्डर करे, और उसके बाद psychic वाले ऑर्डर करे थे अपने लिए. and हाँ, and I guess oracle cards are easier to learn also. थोड़े डिफिकल्ट है. इनको तो आप नॉर्मल, इनकी बुकलेट्स आती है, उससे आप पढ़ के भी यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. बट पता है क्या, जैसे मोनोलॉजी का कार्ड है या दूसरे कार्ड्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, दे मोटिवेट यू. बट प्रॉब्लम जो है ना, टू द कोर, मुझे लगता है इधर से पता चलती है. हाँ, मतलब there is they solve a different aspect of your life. These solve a different thing. Right. दोनों के अपने अलग अलग यॉनर्स हैं, जिनके मतलब to sort a specific problem you need a specific deck for that. Like जैसे operations के लिए भी होता है, या मेडिकल में भी होता है कि ठीक है, अगर आपकी स्टमक का इशू है तो यू नीड टू विजिट अ गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट. अगर आपको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, देन यू गो टू अ ईएनटी सर्जन. उसी तरीके से आई गेस दिस थिंग आल्सो वर्क्स. बट यू हैव टू हैव दैट नॉलेज. हाँ, ठीक है, मतलब यू हैव टू हैव दैट नॉलेज कि मुझे यहाँ पे जाना है. सो अगेन फॉर दैट पर्पस यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज कार्ड्स. जस्ट हैविंग देम इन कलेक्शन इज नॉट सफिशिएंट. थैंक यू. Thank you for making me realize I wasted my money on them. No, you have not wasted yet. But if you don't start, then no, definitely I mean I've started, but बहुत basic level पे. अभी like how you say that you use your Osho Zen cards just for your personal reading. Right.
Likewise, I use them for myself. मैंने Yes, अभी तक ठीक किसी है. के लिए भी जो रीडिंग करी है मैंने इसके साथ ही करी है. And because somewhere or the other even I feel ये वाले कार्ड्स इन डेप्थ सिचुएशन को आपको देते हैं. समझाने में और सोल्यूशन देने में हेल्प करते हैं. ये वाले उतना नहीं करते. शायद एस्ट्रोलॉजी वाले कार्ड्स थोड़ा करते हैं बिकॉज उसमें थोड़ा इन डेप्थ अलग सिचुएशन है. बट साइकिक और मूनोलॉजी जो है ये दे आर फॉर just for that motivational aspect kind of. Motivational aspect, not only moonology ka, when you are meditating on full moon, new moon and other phases also, you will see the cards will actually give you the guidance, that motivation that you need, or whenever you are in a situation when you cannot find a solution कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, these cards will help you. Okay, I would like to end, I mean, we have had a very healthy discussion on tarot, and I would like to end today's podcast with my last question to you. Is tarot also a endless learning process? Yes. You confused me with your answer. At first I felt as if you did not understand my question. No. No, but is it a continuous learning process, or is it like एक बारी you have understood कि ठीक है टैरो डेक्स का ये मतलब एक स्पेसिफिक टैरो कार्ड का ये मतलब है, and I understand that that's not true. Each card has multiple meanings, but so is it a continuous learning process या it is कि ठीक है एक बारी आपने एक basic understanding ले ली and that is good enough for you to carry out throughout your life? And if not, then how does one person keep themselves updated with when it comes to tarot readings? So एक बार आपने सीख लिया और आपने उस चीज को लाइफ लॉन्ग उसी चीज को बस यूज कर रहे हो, then I think that you are not putting that much effort in your skill. ठीक है कि चलो एक बार सीख लिया हो गया काम. But I personally feel that tarot is an ongoing process. The learning for this skill is kind of an ongoing, because it's very interesting कि आपने एक कार्ड को किस तरीके से देखा और दूसरे का क्या विजन निकला. ठीक है, there are tarot forums available online. There are many people who share their readings about the cards on YouTube, on Instagram and other social media platforms. So if you are a keen person who wants to upgrade themselves, keep looking onto them, because there are times कि उनकी कौन सी एक पॉइंट आपको क्लिक कर जाए and that stays in your mind forever. And when you are doing reading for somebody, and वो automatically आपको क्लिक करेगी कहीं ना कहीं पे. So when you tell that person, and it might resonate with them also. मेरे साथ हो चुका है ये वाला चीज. So there was one point which I learned from somebody, and when I implemented them in my readings, I saw that there is a difference in connectivity also with the customer, and that built the trust level also. एक अपने आप को satisfaction भी हुई कि हाँ मुझे ये चीज़ याद थी कहीं ना कहीं. My subconscious mind had that hold on this particular thing, and if that particular thing is being coming in my mind while doing a reading for this person, that means there is a connection. और वो उसको रेजोनेट कर रही है, तो इससे मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी और इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट व्हेन यू लर्न, आपने इतना सा लर्न किया है, इतने से नॉलेज के साथ आप कितना एक्सपैंड मतलब कितना कर लोगे, कितना गाइडेंस आप प्रोवाइड कर पाओगे. एट सम पॉइंट यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट लैक. ठीक है, एंड दैट लैक विल अल्टीमेटली कॉज यू टू सर्च फॉर मोर. ठीक है, एंड I think you should keep on learning about these cards, because सबका perspective about cards is different. So it's a very good thing in fact. कुछ ना कुछ नया पॉइंटर निकल कर ही आता है. एक वीडियो को अगर आप दोबारा सुनोगे ना थोड़े टाइम के बाद, कुछ दूसरा पॉइंट रेलेवेंट पॉइंट निकल के आ जाएगा, जो आपको लगेगा कि यार ये वाला चीज आई कैन कीप विद मी ऑल्सो दिस पॉइंट. सो व्हेन यू लर्न ऑल्सो ना टैरो कार्ड रीडिंग, जब आप टैरोस के कार्ड्स के बारे में लर्न भी करते हो, तो I think every teacher always says that you have to maintain a journal with yourself for your cards. So whenever you are taking out a reading, notice the first thing that comes in your mind when you're reading that card. Yeah, first imagery that comes into your mind. Because that is something which is the most important element. And वो ultimately कहीं ना कहीं solution होगा आपका. तो
Tarot is an ongoing process. It never stops. Okay. It is your desire which stops. Okay. Thank you for coming on this podcast. And a lot of my doubts, as well as I hope viewers के doubts भी clear हुए होंगे इस podcast के through. And I'm so grateful that you took out time from your busy schedule for this podcast. And I'm hopeful I get you for the next podcast related to numerology and Vastu. numerology, Vastu, and Crystals. crystals. Absolutely. Yes, So thank you, Karthik, for having me on board with you. my pleasure. It was lovely actually to discuss in detail about tarot cards after a very long time. मतलब इतना detail के अंदर में discussions about this field. I think you are somebody who has taken up. Thank you. I'm so grateful. I'm crying. चेहरे पे नहीं दिख रहा बट अंदर में रो रहा हूँ. Edit कर लेना ये. नहीं रहेगा यार, ये रहेगा. मैंने कुत्ता भी बोला भी. मैं वो काट दूंगा. वो वर्ड मैं हटा दूंगा, घबराओ मत. Thank you guys for joining in on today's episode. I hope the episode with Sakshi M. Chugh was interesting for you guys and you stayed till the end of the episode with us. Thank you so much. Please don't forget to like, share and subscribe this channel if you learned something from it. In today's episode, we learned what is tarot and what are the basic criteria required to become a tarot reader. We also debunked certain mysteries that revolve around the ancient science of tarot reading. Don't forget to like, share and subscribe to this channel. We are bringing some more interesting podcasts for you guys. Until next time, keep learning, keep seeking and stay curious.